Students, today we will discuss the atomic and physical properties of d block elements. And in my last lecture we have discussed some atomic and physical properties, just like we have discussed the atomic radii, ionic radii, then enthalpy of atomization, melting and boiling point, metallic bond formation. And today we will discuss these 6 properties. Number 1, magnetic character we will study, then colored compound formation, then we will study about the complex compound formation, then catalytic properties, alloy formation, and finally we will study about the interstitial compound formation. So I'll start with the first property of today's lecture, that is magnetic character, or you can say magnetic properties or magnetic character of d block elements, or we can say them as metals, because all the d block, it is totally made up of metals. So the first thing I'll write here, that the d block metals they possess magnetic character. Possess magnetic character means these are, we can say, magnetic in nature. Now अब ये magnetic क्यों है, इसका reason क्या है, just see out. The reason, because of the presence of unpaired electrons. The symbol of unpaired electron is N. They are having a unpaired electron, and due to the presence of unpaired electron they will show the magnetic nature or magnetic behavior. अब unpaired electron की वजह से magnetic behavior क्यों होता है, देखिए जो unpaired electron है, this is the unpaired electron, ये अपने ही एक्सिस पर either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट करता है, और उस रोटेशन की वजह से व्हाट ही डज, ही सिंपली क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट विल आई राइट, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा बेटा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो मैंने बाहर की साइड दिखाया है, दिस इज क्लॉकवाइज, और ये जो अंदर की साइड है बेटा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. सो दो तरह से वो रोटेट कर सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो ड्यू टू द रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक field. Clear? And this magnetic field is automatically induced in that particular element or metal जिसमें आपका unpaired electron present है. So थोड़ा हमने स्टडी किया कि मैग्नेटिक नेचर किस वजह से होती है. देन वी हैव स्टडीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक नेचर क्या करता है, हाउ इट कैन, यू कैन से कि बनाता कैसे मैग्नेटिक नेचर, हाउ इट क्रिएट्स. तो उसका सिंपल लॉजिक है कि जब वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा, इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नाउ वी हैव टू स्टडी, यू कैन से द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नेचर. अगर आप मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पर स्टडी करें तो जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, बेसिकली दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप आई विल से डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सेकेंड स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक substances, and the third is ferromagnetic substances. Now just see what is the meaning of diamagnetic substances. These are the substances which are weakly repelled. I'll again repeat, these are weakly repelled by the external magnetic field. जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे, दे विल एक्सपीरियंस अ वीक रिपल्शन. रीजन, दे विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दे विल हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से व्हाट दे विल शो, दे विल, यू कैन से, एक्सपीरियंस अ वीक रिपल्शन. ठीक है, चलिए. नाउ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर weakly attracted by the external magnetic field. Clear? Strong attraction नहीं है, weak attraction है. This weak attraction is due to the presence of small number of unpaired electron. I will say if the unpaired electron is 1 to 3,
द सब्सटेंस इज सेड टू बी पैरामैग्नेटिक, मीन्स हमारे पास 1, 2 या 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, द सब्सटेंस विल एक्सपीरियंस अ वीक अट्रैक्शन बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. नाउ कम टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. These are the substances which are strongly attracted by the external magnetic field. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी. रीज़न, यहाँ पर वीक अट्रैक्शन था तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम था, 1 से 3 था. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 3. सो सिंपल अगर आप बिहेवियर देखें तो डायमैग्नेटिक आर वीकली रेपेल्ड, पैरामैग्नेटिक these are weakly attracted, and ferromagnetic these are strongly attracted. As far as number of unpaired electron is concerned, diamagnetic they will have unpaired electron 0, paramagnetic 1, 2, 3, and ferromagnetic they will have unpaired electron more than 3. So just see out, let us take one example to understand this. I'll simply write that if unpaired electron is 0, diamagnetic, be remember, unpaired electron beta 1, 2, 3, paramagnetic, more than 3 ferromagnetic. So I will study scandium, atomic number 21, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड है. जब आप d1 को ड्रॉ करोगे, बी क्लियर, 1, 2, 3, 4, d1 like that, this is 3d1. So 3d1 has 1 unpaired electron. So due to the presence of 1 unpaired electron, this scandium, it will act as paramagnetic substances. I'll give one more example. अब अगर हम जिंक के बारे में स्टडी करें, जिंक एटॉमिक नंबर 30, द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. अब यहाँ पर देखिए बेटा, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कंप्लीट और फुलफिल्ड है. फुलफिल्ड में तो सारे ही पेयर्ड होते हैं, ऑल आर फुलफिल्ड, 2, 2, 6, 6. सो आई विल से द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, एंड इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, इट इज डायमैग्नेटिक. कि जिंक डायमैग्नेटिक है, स्कैंडियम आपका पैरामैग्नेटिक. नाउ वन मोर एग्जांपल वी विल डिस्कस हियर. कॉपर सल्फेट. अब कॉपर सल्फेट में बेटा ऑल ऑफ यू नो कि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो जो कॉपर की स्टेट आएगी वो +2. यानी मुझे स्टडी क्या करना है, Cu+2 आयन. सो पहले मैं कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, एटॉमिक नंबर 29, एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. ये थी कॉन्फ़िगरेशन, और हमें लिखनी है Cu2 पॉजिटिव. सो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक S से निकलेगा और एक D से. सो कॉन्फ़िगरेशन आई विल गेट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d9. क्लियर. अब यहाँ तक सारा आपका कंप्लीटली फिल्ड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. 3d9 को अगर हम ड्रॉ करें, 1, 2, 3, 4, सो 3d9 इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो वी विल हैव 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन में अगेन इट इज paramagnetic. Clear to all of you? Now one more thing you have to understand students, कि जो मैग्नेटिक नेचर है, बड़े ध्यान से करना है. द मैग्नेटिक नेचर, और आई कैन से मैग्नेटिक करेक्टर और मैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसका मैग्नेटिक करेक्टर या मैग्नेटिज्म उसमें ऑलरेडी ज़्यादा होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब अगली चीज़ आती है, नेक्स्ट थिंग, कि हाउ कैन वी मेजर दिस मैग्नेटिक करेक्टर. सो आई विल राइट मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक करेक्टर. measurement of magnetic character. This magnetic character is measured in terms of magnetic moment. हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में मेजर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए. द फॉर्मूला इज म्यू इज इक्वल टू √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन. Bm stands for Bohr magneton, and this n stands for
number of unpaired electrons. Clear to all of you? So चेक करते हैं बेटा इसमें थोड़ा सा, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम Cu पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करें, एटॉमिक नंबर 29, इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 unpaired electron 0. सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज, बेटा यहाँ पे n की जगह आप 0 पुट करोगे, 0 0 प्लस 2 0 बोहर मैग्नेटॉन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. सो Cu पॉजिटिव विल हैव द मैग्नेटिक मोमेंट 0. सो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो सब्सटेंस क्या होगा आपका, डायामैग्नेटिक. देखिए अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, सो व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट दैट this is diamagnetic. Clear? This is the first example. Now if I'll take Cu plus की जगह I'll take Cu2 positive. Now the configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9. Now बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीटली फिल्ड है. अगर आप 3d9 को ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we are having one unpaired electron. अब बेटा अगर मेरे पास ये one unpaired electron होता है, I will say that this is paramagnetic. Now what about its magnetic moment? Mu is equal to under root, n की वैल्यू बेटा 1 पुट कीजिए, 1 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, दैट इज 1.73 बोहर मैग्नेटॉन. मीन्स आई विल से कि अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, सो आपका जो सब्सटेंस होगा पैरामैग्नेटिक और यू कैन से फेरोमैग्नेटिक. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने स्टडी किया मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. चलिए मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक करेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ विल स्टडी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक करेक्टर in the transition metals or transition series. Variation of magnetic character, or you can say magnetic moment in transition series. चलिए सो हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. वही मैंने बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. फिर कोई निकला कॉपर, जिंक. नाउ इफ आई राइट देयर कॉन्फ़िगरेशंस, आर्गन सभी में आएगा. सो पहले आर्गन नोट करते हैं सो दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी क्वाइट ईजी. चलिए अब एटॉमिक नंबर आपको पता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30. कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस. सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर स्कैंडियम, आर्गन सभी में आएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 4s2 3d1, देन 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, this will be 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 एंड दिस इज बेटा 4s2 3d10. अब अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हैं, बिल्कुल सिंपल है. मैं यहाँ D1 ड्रॉ करता हूँ. वैसे तो आपको पता है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम कई बार निकाल चुके हैं, बट अगेन देखते हैं. दिस इज D1. सो D1 में बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1. अगर मैं D2 करूँगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2. D3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन. D5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक एस का. अगेन फिर से देखिए
5 D5, ठीक है बेटा, क्लियर, 5 तो D के हो गया और एक S का, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट D5 अगेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S 2 है, कंप्लीटली फिल्ड है, वहाँ नहीं होगा। अब D6 पे आइए, सो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D7 बेटा 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D8 में बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये D10 हो गया, सो D में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट 4s1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 4s2 3D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। सो जस्ट सी आउट, बहुत ईजी है, बिल्कुल क्लियर समझेंगे। आपको पता है जो आपका मैग्नेटिक करेक्टर है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन increases from left to right up to middle। कहाँ तक इंक्रीज होता है? मिडल तक इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 6, देन डिक्रीजेस टू लास्ट, ठीक है। तो जैसे आपका स्टार्टिंग में बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड देन डिक्रीजेस टू द लास्ट। सो वी कैन से the magnetic character, or I can say magnetic moment increases from left to right up to the middle of the transition series, and then decreases to the last of ट्रांजिशन सीरीज। तो सिंपल ध्यान रखना है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन होगा वही आपका मैग्नेटिक करेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, यू कैन से द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज लेक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इस पर बेस्ड हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, विल डिस्कस सम कंसेप्चुअल्स बेस्ड ऑन दिस। कॉन्सेप्चुअल्स, सो फर्स्ट टाइप में कॉन्सेप्चुअल कैसे आ सकता है, देखिए द क्वेश्चन नंबर 1 मे बी आस्क कि प्रिडिक्ट द नेचर, यू हैव टू प्रिडिक्ट नेचर whether the substance is diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic। So condition आपको पता है, you know, if unpaired electron 0 diamagnetic, unpaired electron 1 2 3 paramagnetic, unpaired electron more than 3 ferromagnetic। So we will see one example here, Fe2 positive. All of you know the atomic number of iron is 26. Its configuration is 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6। Now Fe2 positive में आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो फोर्थ शेल से 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s0 3d6। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक आपके कंप्लीटली फिल्ड है, सो आई कैन से ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो इफ आई ड्रॉ द 3d6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू विल हैव। सो ऑन द बेसिस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी कैन से फेरो मैग्नेटिक। और बेटा एक टर्म और हो सकती है फेरो मैग्नेटिक के लिए, हाईली पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर मे बी आस्क्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आ सकता है? द एग्जामिनर में से कि विच इज मोर मैग्नेटिक। Question number 2. So all of you know that magnetic character is directly proportional to unpaired electron। तो यहाँ पर हमें unpaired electron कैलकुलेट करने होंगे एंड आई विल टेक द एग्जाम्पल Mn2 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव। सो पहले Mn की कॉन्फ़िगरेशन,
सो एटॉमिक नंबर सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। सो Mn का एटॉमिक नंबर 25। सो 25 में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। और Mn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होंगे, ठीक है। सो आपकी Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। क्लियर। सो पहला ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने Mn2 पॉजिटिव की। सो D5 में आपको पता है अच्छी तरह से, इन द D5 you will have 1 2 3 4 and 5 unpaired electron। clear। चलिए now Cr2 positive, chromium atomic number 24 and it has exceptional electronic configuration। so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। now बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, सो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और एक 3d5 से निकलेगा। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकला 4s0, 3d5 से एक निकला 3d4। अब हम ड्रॉ करेंगे 3d4 को टू फाइंड आउट कि भाई इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सो इफ़ यू विल ड्रॉ 3d4 1 2 3 4 1 2 3 4, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। सो बेटा Mn2 पॉजिटिव में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और Cr2 पॉजिटिव में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो वी कैन से Mn2 पॉजिटिव इज मोर मैग्नेटिक। क्लियर। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, इस टाइप में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिनर विल से कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक करेक्टर। अरेंज इन द increasing order of magnetic character or magnetic moment। so I'll take simple example, हम इसमें लेके चलते हैं, ठीक है। क्या what is given, scandium, titanium, vanadium, atomic number 21 22 23। so if you write the configuration, argon 4s2 3d1, this will be argon 4s2 3d2, this will be argon 4s2 3d3। सो बेटा D1 में आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, D2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 और D3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। सो ऑर्डर विल बी नाउ स्कैंडियम देन टाइटेनियम देन वेनेडियम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये मैंने आपसे फर्स्ट डिस्कस करा, चलिए इसी में एक और डिस्कस कर लेते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब इसी में मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है ना। सभी की मैं स्टडी करूँगा, दैट इज सेकेंड वन इज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव एंड वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, हाँ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। चलिए और वेनेडियम भी हम लेके चलेंगे 3 पॉजिटिव। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। सो 2 तो बेटा S से निकल गए और एक D से, तो 4s0 3d0। सेम यहाँ से 2 S से निकल गए, एक D से निकला 4s0 3d1। यहाँ पर बेटा 2 S से निकले, एक D से निकलेगा 3d2। सो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये सिर्फ आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बच गई, मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पर D1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे D2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। सो ऑर्डर विल बी स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, देन टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, देन वेनेडियम 3 पॉजिटिव। क्लियर। सो एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस। द क्वेश्चन इज इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर आयन इज, कॉपर आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच
कॉपर इज प्रेजेंट। स्टेट आपको बतानी है बेटा जिसमें कॉपर प्रेजेंट है। स्टेट का मतलब यू हैव टू टेल कि कॉपर Cu+1 में है, Cu+2 में है, या वो अपनी ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है, इट मे बी इन द ग्राउंड स्टेट आल्सो। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमें बोहर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू √n+2। सो इट इज़ 1.73 इक्वल्स टू √n+2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से n निकालना है। सो सिंपल है, इसको आप स्क्वायर कीजिए। जैसे भी जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब कॉपर आयन जो है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। ये सॉल्यूशन आप मैथमेटिकली यू विल ट्राई योरसेल्फ, इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कॉपर जिस स्टेट में प्रेजेंट होगा उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सो पहले मैं कॉपर की ही कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ठीक है ना। तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब बेटा इस स्टेट को देखो, यहाँ पर s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट एक थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा आपसे। हमने क्वेश्चन में आपको कॉपर आयन दिया हुआ है। सो कॉपर आयन का मतलब मुझे उसकी आयनिक स्टेट में काम करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम ग्राउंड स्टेट को भी देखेंगे, बट ग्राउंड स्टेट को कब देखते हैं? जब यहाँ पर सिर्फ कॉपर मेंशन हो कि आप कॉपर को बताइए किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो मैं उसकी आयनिक स्टेट भी चेक करूंगा और मैं उसकी ग्राउंड स्टेट भी चेक करूंगा। बट अभी क्वेश्चन क्या है मेरा? अभी क्वेश्चन है कि कॉपर आयन। सो कॉपर आयन में मैं क्या कर देता हूँ, इस ग्राउंड स्टेट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब इसको मैंने हटा दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी पहली आयनिक स्टेट Cu+1। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा 4s0 3d10। अब बेटा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, जबकि हमारी आयनिक स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी +1 में भी नहीं होगा। और ये तो था ही नहीं एटॉमिक, क्योंकि हमने आयन वर्ड मेंशन किया था। मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया आपको समझाने के लिए कि अगर आयन नहीं है तो आप एटॉमिक स्टेट या ग्राउंड स्टेट को भी चेक कर सकते हो, बट अगर आयन गिवन है तो सिर्फ आपको आयनिक स्टेट चेक करनी है। अब कॉपर की जो दूसरी स्टेट है वो Cu+2 है। सो उसमें कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। और 3d9 में मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर जो मेरा कॉपर है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। सो this is we have completed the first property of today's lecture. It is a quite big property. चलिए now we'll go to the second property. The second property is color compound formation. Second property of today's lecture, colored compound formation. चलिए सो इसमें थोड़ा मैं आपको बताऊंगा बेटा मेनली कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। वो ज़्यादातर बेटा कलर्ड होते हैं। अगर हम एग्जांपल ही लेके चले, सो कॉपर सल्फेट इट इज़ ब्लू इन कलर, कंपाउंड के बारे में बताया, और निकल 2 पॉजिटिव इट इज़ ग्रीन, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। सो रीजन बिल्कुल सिंपल है, इसको समझेंगे। द कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, और यू कैन से कलर, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोस डी ट्रांजिशन। इस चीज को समझना है बेटा। 1 लाइन मैंने आपको आंसर बता दिया कि अगर हमारे सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो इट विल अंडरगो डी ट्रांजिशन और कलर इंड्यूस होगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते क्या है, जस्ट सी आउट। दिस इज योर डी ऑर्बिटल, डी सबशेल कह लीजिए इसको, कंप्लीटली आपकी डी सबशेल है। दिस डी सबशेल विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, T2G एंड अपर इज बेटा EG. Clear? This splitting of D subshell into 2 parts, this is said to be crystal field splitting.
हालांकि इस चैप्टर में इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करना है. दिस इज सेड टू बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. सो अगर आपके पास, ध्यान करना है इसमें, T2G ऑर्बिटल ये आपके लो एनर्जी ऑर्बिटल हैं और EG आपके हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स. क्लियर. अब इस चैप्टर में क्या करना है वो देखिए, क्योंकि इसकी डिटेल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में करेंगे. अब अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका लो एनर्जी D में प्रेजेंट है. ठीक है. अब जब इसके ऊपर वाइट लाइट आएगी, क्या आएगी? वाइट लाइट. सो व्हाट ही डज, ये वाइट लाइट में से कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा. आई सिंपली राइट इट एब्जॉर्ब सम कलर्स फ्रॉम वाइट लाइट. और ये टेंडेंसी सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होती है. ठीक है. सो पहला स्टेप क्लियर हुआ. जब आप किसी भी डी ब्लॉक के कंपाउंड या डी ब्लॉक मेटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वाइट लाइट आप डालोगे, सो वो वाइट लाइट में से कुछ कलर को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. और इट शिफ्ट टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल. हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज सेड टू बी द डी ट्रांजिशन. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने वाइट लाइट में से कुछ कलर को एब्जॉर्ब किया और वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया. डी ट्रांजिशन. अब इस वाइट लाइट में से जो कलर उसने एब्जॉर्ब किए वो तो उसने यूज किए फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्साइटेशन. जो रिमेनिंग कलर्स बचे, दीज रिमेनिंग कलर्स, आई विल राइट ही ट्रांसमिट्स द remaining colors from white light. वो कलर क्या हुए? ट्रांसमिट हो गए. एंड दीज कलर्स विल गिव द कलर टू द डी ब्लॉक मेटल और कंपाउंड. क्लियर. सो इसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझेंगे. दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम कलर्स फ्रॉम द वाइट लाइट एंड अंडरगो डी ट्रांजिशन. ठीक है. देन ही ट्रांसमिट्स द रिमेनिंग कलर्स फ्रॉम द वाइट लाइट विच गिव द कलर टू द मेटल ऑफ द कंपाउंड. एंड बी क्लियर, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई विल राइट, द कलर्स ऑफ transmitted light are complementary to the colors of absorbed light. सो शॉर्ट में मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया. यही इसमें लिखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डी ट्रांजिशन करेगा, वाइट लाइट में से कुछ कलर एब्जॉर्ब करेगा, जो रिमेनिंग कलर ट्रांसमिट करेगा, दैट इज योर कलर ऑफ द कंपाउंड और डी ब्लॉक मेटल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अब एक चीज़ क्लियर है बेटा बिल्कुल, कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, देन द कंपाउंड इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जीरो. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं. कंपाउंड इज और एलिमेंट इज कलरलेस. इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो, देन कंपाउंड और एलिमेंट इज colored. Clear to all of you. चलिए now we will discuss some conceptual question based on colored compound formation. But two things you have to remember, कि जो colored compound formation है ये किसकी वजह से है? Very important, due to the presence of unpaired electron which undergo डी ट्रांजिशन. ये बेटा आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, जो इस टॉपिक का मेन हेड है. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, which is colored and which is colorless. First is which is colored and which is colorless. So इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है ZnSO4 और बेटा CuSO4. सो यहाँ पे देखिए Zn पे +2 चार्ज है, यहाँ Cu पे +2 चार्ज है. मीन्स मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो Zn +2 की लिखनी है और यहाँ मुझे लिखनी है बेटा Cu+2. तो डायरेक्टली नोट करते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 और Cu2 पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9. सो बेटा ये 3d10 ये 3d9, 3d9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3d10 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो इट इज़ क्लियरली विजिबल
कि Zn2 positive is colorless, whereas Cu2 positive is colored due to the presence of unpaired electron which undergo dd transition. Okay, चलिए now question number 2. He says why Cd2 positive, cadmium 2 positive, Hg2 positive are colorless or white. So बेटा सिंपल है, कलरलेस है, इट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो एंड देयर इज नो dd ट्रांजिशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके जीरो आएंगे. नाउ वन मोर थिंग, प्रिडिक्ट वेदर दीज आयंस आर कलर्ड और कलरलेस. चलिए आयंस के बारे में डिस्कस किया है. सो आयन इज Fe2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन 26 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 26 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6. तो 3d6 को बेटा अगर आप ड्रॉ करोगे 1 2 3 4, so we are having 1 2 3 4 5 6 4 unpaired electron. So I will say this is Fe2 positive is colored. ठीक है, सो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते देन कलरलेस. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज लेक्चर, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन. नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन. चलिए, सो इसमें पहले मैं बताऊंगा आपको कि बेटा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है ना, ये वो कंपाउंड है, पहले डायग्राम से समझाता हूँ. देखिए, इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल FeCN6 4 नेगेटिव. इसमें ये जो Fe आयन है ये आपका D ब्लॉक से बिलोंग करता है. सो इसमें होगा क्या, ये आपका Fe और Cn पे ऑल ऑफ यू नो Cn माइनस होता है, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव. सो Cn नेगेटिव और Fe के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. Cn नेगेटिव और Fe के बीच में यू आर हैविंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर? ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, ये एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल या आयन, सभी आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो सिंपल अगर मैं आपको वन लाइन में कहूँ, वैसे तो बेटा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल है, बट अभी के लिए समझिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल या आयन वो सराउंडिंग आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, सो यहाँ पर द मेन थिंग इज डी ब्लॉक मेटल्स और देयर आयंस, दे जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. हमें इसका रीज़न करना है, इसके डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है, तो इसमें रीज़न हमें स्टडी करना है. व्हाट इज द रीज़न? सो रीज़न नंबर 1, जस्ट सी आउट. जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, दे आर हैविंग द स्मॉल साइज. पॉइंट नंबर 2, दे आर हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज. अब अगर बेटा स्मॉल साइज होगा और हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा. ठीक है. नंबर 3, दे विल हैव, यू कैन से, हाई चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज इज टू साइज. अब इनका साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा.
और चार्ज डेंसिटी एक वो पैरामीटर है जिससे ये पता लगाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्या है। सो यहाँ पर आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी टुवर्ड दी सराउंडिंग वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4, दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ empty d orbitals to accept electron for coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आयरन की एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाएगा। तो सबसे मेन फैक्टर क्या है कि आयरन या डी ब्लॉक मेटल उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। सो 4 थिंग्स इस चैप्टर में क्या लर्न करना है। Why the d block metal or their ions generally form complex compound? First reason, small size. Second, high nuclear charge. Third, high charge density. And fourth, they will have the large number of d orbitals, empty d orbital, to accept electron for coordinate bond formation. So beta, this is regarding the third property और कुछ नहीं है इसमें. Now we will shift to the property number 4, that is catalytic properties. Just see out. कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि जो आपके मोस्टली डी ब्लॉक मेटल्स और देयर कंपाउंड्स दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल और वेरी सिंपल, अगर आप रिएक्शन लेके चले, नंबर 1 SO2 + O2 फॉर्मिंग SO3, सो इसमें V2O5, दिस इज अ डी ब्लॉक कंपाउंड, कैटलिस्ट है यहाँ पे, दिस इज अ कैटलिस्ट। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। दिस रिएक्शन यू हैव डन इन द 11th क्लास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करोगे सो यू नीड अ कैटलिस्ट, आइदर निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम। एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा बेटा, एक इस पे ऐड होगा, यू विल गेट CH3। So this nickel, palladium और platinum, these are catalyst. So you have seen कि ये D block metal है, ये compound है, they will act as catalyst। हमें इसका रीज़न स्टडी करना है कि ऐसा क्यों है। सो रीज़न से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। सो सिंपल है बेटा, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड या रेट को इंक्रीज करेगा। कैसे, ये देखिए। अब मैं एक आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ, छोटा सा डिस्कशन है, केमिकल काइनेटिक्स में डीप डिस्कशन है। दिस इज योर रिएक्शन, ऐसे प्रोसीड कर रही है। ये बेटा एनर्जी, यहाँ पर ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, R से डिनोट किया, ठीक है। और ये एक बैरियर है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। सो जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, सो उससे बेटा इस बैरियर को क्रॉस करना होगा इस तरीके से, देन इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। ध्यान देखिए, किसी भी रिएक्शन में वेन एवर रिएक्टेंट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, उसे इस बैरियर को क्रॉस करना है। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। और इसकी जो एनर्जी है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये है आपकी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। सो अब रिएक्टेंट को इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, EA। अगर उसको ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तभी वो इसको क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज सेड टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन बताता हूँ क्योंकि बेसिकली इसी का काम है। फिर से देखिए, रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके और वो किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। चलिए, अब जब आप कैटलिस्ट ऐड कर दोगे, आपने कैटलिस्ट ऐड किया तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जस्ट सी आउट।
कैटलिस्ट इस रिएक्शन का एक नया एनर्जी बैरियर बनाएगा, ठीक है, यानी वो इस रिएक्शन को एक नए रास्ते से लेकर जाएगा इस तरह से, जिसमें देर इज यू कैन से अ लो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या लो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब पहले कितनी एनर्जी चाहिए थी रिएक्टेंट को? इतनी, अब उसे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ई ए डैश। सो यानी कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है, ठीक है। व्हाट ही हैज डज, ही हैज डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, उसने पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को नीचे लाया है। वो नीचे लाने के लिए चाहे तो उसने खुद एनर्जी प्रोवाइड करी है इतनी, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कैटलिस्ट। बट मेन चीज क्या है कि उसने एक क्या काम किया है कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी था उसको कम कर दिया। कम करने का मतलब पहले रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब उसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो जो लो एनर्जी रिएक्टेंट थे वो भी अब किस में कन्वर्ट हो सकेंगे? प्रोडक्ट में। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में, और रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो कैटलिस्ट का फंक्शन देखिए, वन लाइन में पता होना चाहिए, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। इस चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है, बस ये समझाने के लिए था। आपसे कोई पूछे कि कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है बाय द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए ये काम तो हमारा हो गया। सो डी ब्लॉक मेटल्स दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है, बाय लोअरिंग दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट, दे विल शो द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सो मैं भी स्टडी क्या करना है, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन स्टडी करना है कि वाई दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट। क्लियर? सो फर्स्ट रीजन जो हम स्टडी करेंगे अभी, जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट फॉर्म इंटरमीडिएट with one of the reactant। वो क्या करेगा बेटा, किसी एक रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा। जैसे मैं ये कहूं दिस इज R1, ये कैटलिस्ट लिया, सो ये क्या बन गया बेटा आपका इंटरमीडिएट। क्लियर? देन दिस इंटरमीडिएट आफ्टर दैट दिस इंटरमीडिएट सिंपली combine with other reactant। अब ये दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करेगा, सो वो दूसरा रिएक्टेंट आप क्या मान के चलो R2, टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाएगा, एंड कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड। सो आपको क्लियर हुआ पहला पॉइंट क्या है कि कैटलिस्ट क्या है, वो आपके एक रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर इंटरमीडिएट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा और कैटलिस्ट आपका रीजनरेट होगा। ठीक है, अब अगर रिएक्टेंट ही एक है तो क्या करें? सो उस केस में कैटलिस्ट कंबाइन विद द रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट, एंड दिस इंटरमीडिएट डिसोसिएट्स। ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपके दो रिएक्टेंट थे सो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन किया था, बट अगर रिएक्टेंट एक है सो इंटरमीडिएट क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा टू गिव यू प्रोडक्ट एंड रीजनरेट द कैटलिस्ट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि कैटलिस्ट फर्स्ट इंटरमीडिएट बनाएगा प्रोडक्ट के साथ। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ, मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखूं, आई विल सिंपली राइट formation of intermediate with reactants। और इसमें दोनों केसेस आपको पता है, इफ द रिएक्टेंट इज 1 और मोर देन 1, R1 एंड R2। ठीक है, चलिए अब इसका जो थोड़ा हमें स्टडी करना है कि ये इंटरमीडिएट क्यों बनाता है, तो उसका जो रीज़न है, कॉज डी ब्लॉक मेटल दे विल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। उनके पास बेटा एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड सेकेंडली दे विल हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का मतलब दे विल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Fe है, Fe+2 भी शो करेगा और Fe+3 भी शो करेगा। सो बेटा ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहते हैं ऐसे, Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe+3 विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट कन्वर्जन भी हो सकता है, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, Fe+2 में कन्वर्ट होगा। सो जब ये ऐसा काम करते हैं देन दे सिंपली लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं, ठीक है ना। सो जब ये इस तरह का काम करेंगे, अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, सो वहाँ पर इनको हेल्प मिलती है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की हेल्प। देयरफॉर दे विल इंक्रीज, यू कैन सी द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की वजह से कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, सेकंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर दैट। मैं एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा इसको, फर्स्ट पॉइंट को। हमने एक रिएक्शन किया था बेटा अभी, दैट SO2 प्लस O2 फॉर्मेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ SO3, कैटालिस्ट इज V2O5 डाइवेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। सो इसमें जो पहला स्टेप होगा जस्ट सी आउट, ये आपका जो V2O5 है ये कैटालिस्ट है। सो फर्स्ट स्टेप इज, ये आपका रिएक्टेंट R1, ये रिएक्टेंट R2। सो SO2 प्लस V2O5, रिएक्टेंट R1 कंबाइन हुआ कैटालिस्ट के साथ। अब ये बनाएगा इंटरमीडिएट। क्या इंटरमीडिएट बनेगा देखिए, V2O4, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, प्लस SO3, ये आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, पर उससे पहले एक चीज़ और देखिए। यहाँ पर अगर आप स्टेट निकालोगे वेनेडियम की +5 आएगी, यहाँ पे वेनेडियम की स्टेट +4। सो वही मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम ने अपनी स्टेट को चेंज किया। अब इंटरमीडिएट मैंने क्या कहा था, दिस इंटरमीडिएट V2O4 डाई वेनेडियम टेट्राऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये कंबाइन करेगा रिएक्टेंट R2O2 के साथ। दिस इज योर इंटरमीडिएट combined with the oxygen, that is reactant R2, ठीक है। now it leads to the formation of, I can say, V2O5। चलिए, सो ये पूरे प्रोसेस में देखिए, अगर आप इसको चेक करेंगे, सो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या हुआ, ये आपका रिएक्टेंट, ये कैटालिस्ट, ये इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है सेकेंड रिएक्टेंट्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैटालिस्ट रीजनरेट हुआ और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो ये आपको ध्यान रखना है कि कैटालिस्ट ने इंटरमीडिएट कैसे बनाया, सारा क्लियरली हमने इसको एक्सप्लेन किया। सो पहला रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कि दे विल फॉर्म इंटरमीडिएट विद द रिएक्टेंट्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टेप नंबर रीज़न नंबर 2 इज they provide large surface area। तो जो कैटलिस्ट है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इफ़ मोर इज द सरफेस एरिया, ठीक है ना, सो द रिएक्टेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होंगे इस तरह से, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब इस कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसकी वजह से द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स वीकन्स, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू होंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दे स्टार्ट वीकन्स एंड दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो सिंपल है, लार्ज सरफेस प्रोवाइड करी, रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हुए,
कंसंट्रेशन बढ़ी उनकी, कंसंट्रेशन बढ़ने से जो बॉन्ड है रिएक्टेंट के वीक होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। सो 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के, कि वाई दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट, बिकॉज दे कैन फॉर्म द इंटरमीडिएट विद द रिएक्टेंट। और इंटरमीडिएट क्यों बनाते हैं, मैंने रीजन बताया था, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकंड दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उनके बॉन्ड वीक होंगे और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये सारे फैक्टर स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। नाउ स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं क्लियर कर दूं बेटा, जिनमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं करा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कैटालिटिक करी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करा, यहाँ सिर्फ आपको रीजन लर्न करना है कि वाई दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट और वाई दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, ऑल ऑफ यू, एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर बोल लो बेटा, या सॉल्यूशन बोल लो, ऑफ 2 और मोर मेटल्स इन लैटिस। क्लियर? जैसे अगर आप लेके चलें, ये लैटिस का मतलब पता होगा आपको, मैंने 11th में भी आप लोगों ने कर रखा है कि सॉलिड के पार्टिकल जिस अरेंजमेंट में होते हैं उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैटिस। सो ये आपके सॉलिड के एटम्स हैं। अब आपने 2 मेटल्स को मिक्स कर दिया, सो ये मान के चलो, ये मेटल M1, ये मेटल M2, ये मेटल M1, ये मेटल M2, M1, M2, M1, M2, M1। सो बेटा ये क्या बन गया आपका? एलॉय। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इन देयर क्रिस्टल लैटिस और लेट, सिंपली हम उसको लैटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप स्टडी करें तो मैं पहला आपको बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द एलॉयज, जो भी स्टडी करना वो समझिएगा, जो मोस्ट ऑफ द एलॉयज हैं दे आर मेड अप ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। वो ज़्यादातर डी ब्लॉक मेटल्स के बने होते हैं। अगर आप एग्जांपल लेके चलेंगे, सो मैं 2 ही एग्जांपल्स में आपको बता दूंगा। नंबर 1 एग्जांपल इज ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस एस एंड टिन। सेकेंड एग्जांपल ब्रास, कॉपर प्लस जिंक। सो जिंक, कॉपर, दीज आर डी ब्लॉक मेटल। सो हमें स्टडी क्या करना है कि वो आपके एलॉयज हैं वो ज़्यादातर डी ब्लॉक मेटल्स के बने हुए हैं। इसका रीज़न हमें स्टडी करना है। सो जस्ट आई विल राइट, इस डायग्राम को थोड़ा साइड में करते हैं। नंबर 1, so you can create a space here, alloy formation। डायग्रामेटिकली अगर आप समझे तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, copper. So this is, I have drawn the, you can say, alloy of brass that is made up of copper and zinc. अब बेटा इसका रीज़न देखिए, why D block metals जो हैं they will form alloys. So reason, first reason is when we have done the topic atomic radii, so वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि इन द मिडल ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग में रेडियस डिक्रीज करता है, बाद में लास्ट में इंक्रीज करता है, बीच के पार्ट में जहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस करता है शील्डिंग इफेक्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज हैविंग द कांस्टेंट रेडियाई। सो ज़्यादातर डी ब्लॉक मेटल में जो है दे विल हैव द नियरली सेम रेडियाई। अगर बेटा सेम रेडियस है तो एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में मिक्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉपर भी आ गया, जिंक भी आ गया, इसका मतलब कॉपर और जिंक का साइज सेम है, तभी एक दूसरे के लैटिस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। सो नियरली सेम रेडियाई ड्यू टू विच दे इजीली इंटरमिक्स इन देयर क्रिस्टल लैटिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल इजीली मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एलॉय फॉर्मेशन के बाद इंड्यूस होती हैं। प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड ड्यू टू
एलॉय फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने एलॉय की डेफिनेशन करी, फिर हमने देखा भी एलॉय बनता कब है, जब एक दूसरे के लैटिस में मिक्स होना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है। एंटर कब करेंगे, जब साइज सेम होगा। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली का साइज सेम होता है, ड्यू टू विच ये एक दूसरे में इजीली इंटरमिक्स हो सकते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम जो एलॉयज हैं वो किसके बने होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स के। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो इंड्यूस होती हैं जब आप एक से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करोगे, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें आएंगी, मीनिंग कॉपर की प्रॉपर्टी भी आएगी और जिंक की प्रॉपर्टी भी आएगी। दैट इज क्लियर। सो द प्रॉपर्टीज आर हार्डनेस इज इंक्रीज्ड, हार्डनेस इंक्रीज होगी। नंबर 2 यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, एंड रेजिस्टेंस टू करोजन आल्सो इंक्रीजेस। सो यहां पर लर्न क्या करना है आपको बिल्कुल कि भाई व्हाट इज द रीजन और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस होती है, दैट यू हैव टू लर्न। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन। नाउ विल शिफ्ट टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। चलिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। चलिए पहले मैं को डायग्रामेटिकली बताता हूं बेटा। अगर आप किसी डी ब्लॉक मेटल का लैटिस लेके चलोगे, लैटिस ऑफ डी ब्लॉक मेटल, सो ये डी ब्लॉक के एटम्स हैं, दिस वे, एंड दीज साइट्स, these are said to be the interstitial sites। बेटा हम इनको voids भी बोलते हैं। क्लियर। सो ये आपके डी ब्लॉक मेटल है, मैं इसको डी से इंडिकेट करूंगा। डी ब्लॉक मेटल के एटम्स हैं ये, दिस वे। अब ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स है इसमें छोटे छोटे एटम्स को ये ट्रैप करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, या कार्बन को ट्रैप किया, या नाइट्रोजन को ट्रैप किया, ठीक है ना। सो ये जो छोटे छोटे एटम्स को ये अपनी इंटरस्टिशियल साइट्स में ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा बना, दिस इज सेड टू बी द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसमें एक छोटा एलिमेंट बड़े मेटल के इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाता है, किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ ट्रैप्ड है। सो डेफिनेशन आई विल राइट, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फर्स्ट उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कंपाउंड इन विच स्मॉल एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड इन द interstitial sites of big metals। such compounds are said to be the और interstitial compound। और ये ध्यान रखना है डी ब्लॉक मेटल्स में ये जिनको ट्रैप कर रहे हैं, जैसे कार्बन हो गया या नाइट्रोजन, these trapped elements, मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, these trapped elements are non metals। क्लियर। सो अब प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए यहां पर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो आपने स्टडी कर लिया, डेफिनेशन। अब जो डी ब्लॉक मेटल्स है, डी ब्लॉक मेटल्स दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बाय ट्रैपिंग नॉन मेटल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन in their lattice sites। Clear to all of you? So now what is the reason for that? सिंस कोई किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं है तो सिंपल एक लॉजिक है कि ये इसमें छोटे एलिमेंट्स को, नॉन मेटल को अकोमोडेट कर सकते हैं, देयरफॉर दे कैन फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। रीजन इज दे अकोमोडेट small non-metals
in their interstitial sites. Now, what are the properties induced in interstitial compounds? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो इंड्यूस हुई हैं इन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? सो सिंपल है बेटा, मिक्सिंग है एक तरह की, मिक्सचर तो नहीं, प्रॉपरली मिक्सचर भी बोल सकते हो, बट ध्यान रखना एक एलिमेंट जो है वो दूसरे की इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है. सो जो प्रॉपर्टीज इंड्यूस होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज्ड फर्स्ट. सेकेंड, वी कैन से electrical conductivity is increased. Clear to all of you? Third, hardness is increased, and in the last, chemical inertness also increases. सो द मेन 4 ये चीज़ें आपकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड में होती हैं. हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हार्डनेस ज़्यादा होगी, केमिकल इनर्टनेस ज़्यादा होगी. सो यहाँ पर भी आपको पहले डेफिनेशन करनी है, फिर यू हैव टू नो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में डी ब्लॉक मेटल्स में नॉन मेटल्स को इंक्लूड किया जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स पे. क्यों करते हैं? बिकॉज दे कैन अकोमोडेट. और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंड्यूस हुई दैट यू हैव टू स्टडी. सो बेटा टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस 6 प्रॉपर्टीज. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स. क्लियर? जो हमने आज स्टडी करी है, दैट्स ऑल.